Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and today we are into the fifth video lesson on the rotational motion. I believe you have seen the previous videos and you are studying good and doing well. All good guys? So today we're going to talk about the two theorems of moment of inertia and they are parallel axis theorem and the perpendicular axis theorem. बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके आपको डिटेल्ड एनालिसिस करके बताऊंगा आज के क्लास में और कुछ प्रॉब्लम्स भी इस पे करेंगे. All good? So now let's quickly start with the first law of moment of inertia that is called as a parallel axis theorem. The first law of moment of inertia that is called as parallel axis theorem. Parallel axis theorem. बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लेते हैं. पहले इसके स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर उस पे इसकी एप्लीकेशंस को वी गोना बी डूइंग और उस पे बेस्ड ऑन दैट वी गोना डू सम प्रॉब्लम. तो बेसिकली लॉ कहता है क्या? व्हाट डज इट सेज? See, it depends upon what have we studied so far, what have we learned so far, and what are the restrictions that we were facing. What were the limitations that we were facing while working out till now? So far, we have studied about the moment of inertia of axis, ring, disc, and sphere, and many more things. But about an axis which is passing through the center. Apart from that, हमने और भी कुछ नहीं किया. हाँ, in the laminas we have seen the diagonal के across या फिर along the about the base हमने वही देखा है. For example, अगर if I have a ring and let's suppose I want to find the moment of inertia about this axis which is probably at a certain distance r from the center. So far we are not in position to do this. What we could do is we can find the moment of inertia about this axis which is passing through the center and it's perpendicular to the plane of the ring. इसके अबाउट अपने को पता है which is mr square. I know about this which is mr square. But if someone asks me to find the moment of inertia about this axis, तो हम लोग अटक जाएंगे. तो उसी अटकन को दूर करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम आने वाला है which is called parallel axis theorem और हमको हेल्प करेगा to find the moment of inertia about this axis. Of course, with certain limitations and certain conditions इसके भी होंगे, but that would give you a wider range to find the moment of inertia. इसके साथ एक और आता है perpendicular axis theorem, वो भी और भी आपके रेंज को बढ़ा देगा टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है बच्चों, तो दिस इज द होल आइडिया. व्हाई डू वी नीड दीस थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बिकॉज़ वी हैव टू इंक्रीज आवर रेंज टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वेरियस सिचुएशंस एंड वेरी अबाउट वेरियस एक्सिस. ओके, तो ये बोलता क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस parallel to the axis passing through center of mass है ना, is given as I naught plus mr square. देखो मैंने पूरा स्टेटमेंट उसको लाइन बाय लाइन नहीं लिखा है, बट मैं आपको समझा दूंगा होता क्या, क्योंकि उसको लिखने में टाइम वेस्ट जाएगा और आपने यू कैन इजिली फाइंड दिस. मैं डिक्टेट करवा दूंगा, आप लिख लेना या फिर खुद से आप लिख सकते हो और आपके पास बुक्स भी होगा फ्रॉम वेयर यू कैन इजिली फिगर इट आउट. तो भैया ये क्या बोलता है ना कि लेट अस सपोज इफ आई हैव अ बॉडी, कुछ भी एक बॉडी है और इसके जो सेंटर ऑफ मास से अगर एक एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया है ना, दिस इज पासिंग थ्रू लेट्स सपोज सेंटर ऑफ मास, और इसके अबाउट अगर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है, देन आई कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस जो कि इसके पैरेलल हो, यहां हो कहीं भी हो, इनसाइड द बॉडी हो आउटसाइड द बॉडी हो, अपने को उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना. तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस दैट इज पैरेलल टू दिस एक्सिस कुड बी इजीली फाउंड आउट, है ना. तो मान लो कि हमारा एक और एक्सिस है which is at a distance of r, let's suppose from here, and about this let's suppose moment of inertia is I dash and this is having a mass, let's suppose m, then the moment of inertia I dash could be given as I naught. अच्छा, I dash ऐसे लिख लेते हैं, I dash could be given as I naught plus total mass of the body and the square of the distance between these two axes. ये आपका हो गया स्टेटमेंट और मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम. बट आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिस इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन, ये प्योर वर्जन नहीं है. अगर प्योर वर्जन है only if it is given that it is passing through the center of mass. ये तभी सही है when this axis is passing through the center of mass. ये इसके center of mass से पास करेगा बच्चों, then only this result is true. अगर ये center of mass से पास नहीं कर रहा है then we cannot take that as I naught.
और अगर वो आई नोट नहीं लेंगे तो ये थ्योरम आपका वैलिड और यूजेबल नहीं होगा। रीजन जानना चाहते हो तो थोड़ा सा इस पे हम बात कर लेते हैं कि भैया सर ने क्या बोल रहा है, व्हाट आई एम सेइंग यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इन दिस पर्टिकुलर थ्योरम दिस आई नॉट शुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अगर नहीं है तो ये फॉर्म सही नहीं है। हम इस बात पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं बच्चों, ठीक है। अब एक मान लेते हैं कि भैया इसी को मान लो, इसी फिगर को, आई कैन यूज दिस फिगर ओनली जस्ट टू have the representation of the masses। मान लो कि inside this बहुत सारे we have infinite number of individual particles, masses बहुत सारे होंगे। let us say कि there is one particle m1 which is at a distance of r1 from here। symbolic representation है of the mass। we can have infinite number of individual mass particle system। मान लो कि एक और मास हमने towards right ले लिया m2 which is at a distance of r2 from this axis। इतनी बात तो क्लियर है। now this is just a symbolic representation of the two masses on the either side of this axis। मैंने इधर उधर दोनों तरफ से ले लिया है, ठीक है जी। और हमने मान लो कि इसको एक सेंटर ऑफ मास फिलहाल नहीं है, ठीक है। ये आपका कुछ भी एक एक्सिस है अबाउट दिस, ऑल गुड। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज टू मासेस अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा वो अपन को देखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज टू मासेस अबाउट दिस एक्सिस, मान लो कि वो आई डैश है, मान लो बच्चों कि वो आई डैश है, तो आई डैश कितना हो जाएगा, आई डैश शुड बी mr स्क्वायर m1 r1, ठीक है। ध्यान से देखना इस बात को। फ्रॉम हियर दिस मास इज गोना बी एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट, क्या लिखेंगे हम m1 r1 प्लस r होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है ना, r प्लस r1। फॉर द मास 2 आई कैन हैव m2 r माइनस आपका हो गया ये डिस्टेंस minus r2 whole square, and we can have infinite number of such masses। we can have infinite number of such masses। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। I'm just taking two for a just a representation, और कोई मुश्किल बात नहीं है ना। थोड़ा इसको एक्सपैंड कर लो बच्चों। so I dash should be given as what, if I open this, इसको ओपन करते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि m1 इसको ले लो r स्क्वायर प्लस मान लो r1 स्क्वायर plus 2r1 plus for the second part we can say m2, और ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस और प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r2 ऐसे एंड so on you can have such things, all good। ध्यान से देखना कुछ गड़बड़ ना हो जाए ना मेरे से ना आपसे, है ना। तो this is going to be how much if I open it up, m1 r स्क्वायर m2 स्क्वायर r स्क्वायर एंड so on m3 r स्क्वायर m4 r स्क्वायर, बहुत सारे आपको टर्म्स मिल जाएंगे। तो कहने से m1 r स्क्वायर प्लस m2 r स्क्वायर प्लस एंड so on m3 r स्क्वायर एंड so on। एक टर्म तो अपने को ये वाला मिल जाएगा फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म को देखते हैं, इसको लिख दो यहाँ प्लस लिख दो, है ना। सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हो, m1 r1 स्क्वायर लाइकवाइज m2 r2 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर एंड so on ये आपको मिल जाएगा, है ना जी, ऑल गुड। लेट अस टॉक अबाउट दिस पार्ट। तो इसको प्लस साइन डाल दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको हो जाएगा कितना 2r r1 माइनस 2r r2, और ऐसे ही कितने लेफ्ट राइट प्लस माइनस वी कैन हैव सो मेनी। समझ रहे बात को, है ना। इतनी तो बात सिंपल है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन। r स्क्वायर इज कॉमन एवरीवेयर एंड कैन यू जस्ट राइट दैट एज r स्क्वायर समेशन ऑफ मासेस m1 m2 m3 जो भी है अपना मास सम हो जाएगा। लुक एट दिस पार्ट कुड बी रिटन एज समेशन ऑफ mr स्क्वायर आई लिख दो बिकॉज वी हैव टिल n नंबर। अच्छा इस केस में देखो कुड बी रिटन एज व्हाट, 2r विल बी कॉमन एवरीवेयर, तो 2r ले लो और अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना। अच्छा हमने m को मिस कर दिया क्या, ओके तो भैया m को भी m1 यहाँ पे हो जाएगा आपका m1 लगा दो यहाँ पे m1, यहाँ पे हो जाएगा आपका m2 एंड so on। तो इनसाइड क्या हो जाएगा बच्चों mi ri। अब वेक्टर में लिख दो बिकॉज वी हैव प्लस माइनस, तो इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दो। क्यों, बिकॉज में अननेसेसरी प्लस माइनस विल बी गोइंग, सो बिकॉज माइनस साइन इंडिकेट्स कि वो लेफ्ट में है राइट में है, दैट इज हाउ द माइनस साइन इज कमिंग अप ओवर हियर।
तो इफ आई राइट दैट इन वेक्टर, दैट प्रॉब्लम ऑफ माइनस एंड प्लस विल बी रिजॉल्व। आई बिलीव ये स्क्रीन में आ रहा है। लेट मी जस्ट हैव अ क्विक लुक। यस, फैंटास्टिक। ओके, ग्रेट। सो this could be written as a vector. This is what? This is the summation of the total masses. This could be written as what? M r square, and this is your moment of inertia. क्या हो गया आपका? ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर हो गया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? और एक बात और समझ लो, अभी रहने दो इसको, दिस इज गोना बी आई डैश, दिस इज गोना बी आई डैश। लुक एट फर्स्ट एट दिस पार्ट। ये क्या है बच्चों? दिस इज व्हाट? लेट अस अंडरस्टैंड दिस पार्ट। If suppose this axis wasn't passing through the center of mass, then this I dash should have been given as in this format. I dash आपको ऐसे, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। I dash should have been given like this: summation of mr square plus 2r summation of mr vector form में हम लोग लिखेंगे, है ना। Then the moment of inertia about this axis should have been this one, not this one. This extra term that we have over here is not over here, so it is a very much simplified version of the moment of inertia. तो लेट अस सपोज कि अगर ये सेंटर ऑफ मास पे नहीं होता तो ये टर्म, दिस टर्म शुड हैव बीन देयर, बट नाउ सिंस वी हैव मेड श्योर दैट इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और अपने को पता है इन द चैप्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आई हैव टॉट यू दैट इफ द सेंटर ऑफ मास इज टेकन एट द ओरिजिन, देन सिग्मा ऑफ एम आर इज गिवन एज व्हाट? 0। अगर आपको याद है बच्चों, और इस सेंटर ऑफ मास की वीडियो देख लो। देखो, सेंटर ऑफ मास इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस एडवांस लेवल के अभी करवाने वाला हूं, ठीक है। नाउ सो दिस पार्ट बिकम 0 माय डियर किड्स। और एक क्या बच गया फिर आपका? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, व्हिच एक्सिस? व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये बन गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो कहीं ना कहीं हमने एक प्रूफ कर लिया। तो दिस इज गोना बी हाउ मच? अगर मैं इसको लिख दूं, इसको पहले लिख देता हूं, that is going to be moment of inertia passing through the center of mass plus this m r square, where r is a distance from the axis that is passing through the center of mass to the axis about which we are supposed to find the moment of inertia. So this is a very much simplified version of parallel axis theorem, only if this axis is passing through center of mass. अगर ये center of mass से पास नहीं हो, जैसा कि कभी-कभी एडवांस में पूछ देता है द जे वालों, और फिर वहां पे बच्चे अटक जाएंगे, बोलेंगे नहीं मेरे को तो यही पढ़ाया गया है कि आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। इट इज ओनली ट्रू, लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, दिस इज ओनली ट्रू व्हेन दिस एक्सिस about which I've taken I not as the moment of inertia has to pass through the center of mass, तभी जाके रिलेशन वैलिड है, वरना रिलेशन वैलिड बच्चों नहीं है। आई बिलीव कि मैंने आपको ये समझा दिया। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे। लेट अस टेक एन एग्जांपल, है ना। सपोज कि माय डियर किड्स, अच्छा कल ही मैंने या फिर पहले इस रिंग से छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स से वी हैव अ रिंग, है ना। अबाउट दिस आई नो दैट व्हेन आई मेक दिस साइन इट मींस द एक्सिस इज कमिंग आउट ऑफ द रिंग एंड उसके परपेंडिकुलर हो, इस बात का ध्यान रखना। अबाउट दिस लेट्स सपोज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई नॉट, और यहाँ पे एक मेरे पास एक और एक्सिस है व्हिच इज मे बी ऑल्सो कमिंग आउट, और उसका डिस्टेंस ऑब्वियसली सर्कल के रिंग के रेडियस के इक्वल होगा। I want to find the moment of inertia about this axis. कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ना। So I dash, बच्चों, that should be given as what? I naught plus mr square. We know that the moment of inertia of a ring through the center about an axis through the center and perpendicular to the plane is given as what? M r square. और बच्चों ये क्या हो गया? M r square. Mass is m, distance also is r, m r square. So the moment of inertia about this axis should be given as 2mr square। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इजिली आप इसको बना पा रहे हो। एक बात और, yesterday I have taught you how to find the moment of inertia of the rod about the, not in yesterday, in the previous video, I think video lesson number 3, in which I have taught you. So there I have taught you that if I want to find the moment of inertia about an axis passing through the extreme, इसके about अगर मेरे को moment of inertia निकालना होता था तो कितना था वो जी? अगर इसको मान लेते हैं I, तो I डैश मान लो। सो I डैश वाज गिवन एज हाउ मच? 1/3, अगर आपको याद है, ml square, where L being the length of the rod and mass being the m being the mass of the rod। अगर आपने याद है, this is what we have got। Now also we have done one more derivative बच्चों, that moment of inertia passing through the center of mass of the rod, exactly center point से पास करने पे उसका जो moment of inertia था, अगर आपको याद है वो, तो मैंने लेट्स सपोज दैट इज आई नॉट, वो था 1/12 ml square। आई बिलीव आपको ये याद होगा, है ना। ऑल गुड। सो नाउ व्हाट वी गोना डू इज,
can I use the parallel axis theorem or and this result can I reach out to this result or not? क्या इस रिजल्ट को और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करके कैन आई डिराइव इट, या फिर इसको हमको डिराइव करना ही पड़ेगा? देख लेते हैं. I know that these two axes are parallel और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? If the length is taken as L, then this has to be how much? L upon 2. Well, good. So, moment of inertia about this, according to the parallel axis theorem, should be how much? I naught. I naught is how much? 1 upon 12 m L square plus mr square. M is the mass. R is how much? L upon 2. तो I'm sure आपको ये दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो this is going to be how much? I dash should be 1 upon 12 ml square plus ml square or 2 square is going to be 4. If you just take the LCM of these two, bachcho, you'll be having 12. 3 plus 1, 4. 4 upon 12 ml square, which eventually going to be cancelled, and you will be getting what we have already got yesterday, 1 upon 3 ml square. बहुत मजा आ गया ना जी? तो देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग बहुत ही मस्त काम कर सकते हैं और आपको ये समझ में आ गया होगा. Any doubts if you have, please do let me know. I would love to help you on that. But this is about the parallel axis theorem और वो इसका प्रूफ है कि भैया this is the simplified version and this is true only when the center of mass के through ये एक्सिस पास करता है, about which the moment of inertia is taken as I naught. अगर वो center of mass के थ्रू पास नहीं करता है then that cannot be taken as the I naught और हमारा moment of inertia theory of moment of inertia about parallel axis वो गलत हो जाएगा. उस केस में हमारा थ्योरी ये हो जाएगा. So this is gonna be the theory when the axis is not passing through the center of mass. और अगर ये पूछ देता है तो आपको ये पता होना चाहिए, you should be aware of it. बिल्कुल भी घबराने वाली बात है नहीं बच्चों, ठीक है? चलो अब थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं. Alright then, अब करते हैं हम लोग फटाफट इसको इरेज करने दो बच्चों, and then I'm gonna do some more practice problem और उसके बाद से हम लोग जाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को भी आज देख लेंगे. I believe in the next video we will be able to do more and more questions. तो आज हम लोग थोड़ा थ्योरम्स को देख लेते हैं. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑन द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. दो तीन और पूछ ही लेता हूं ना. तो लेट्स सपोज कि एक और एग्जांपल छोटा सा ले लो कि लेट्स सपोज इफ आई हैव अ डिस्क, है ना, एक हमारा डिस्क है एंड हैविंग द मास m और इसका रेडियस है आपका r. So this is the axis which is perpendicular outward, है ना. If I ask you to find the moment of inertia about another axis which is tangential, है ना, इसके tangentially ऐसे, मतलब ये एक्सिस भी बाहर की तरफ है, ठीक है जी. तो व्हाट इज गोना बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? इसको मान लो आई डैश. आप इसको ट्राई करो और मेरे को आंसर दो. मीनवाइल आई एम गोना इरेज दिस पार्ट. आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, यू नो, व्हिच इज पैरेलल टू दिस एक्सिस और रेडियस आपका r दे रखा है एंड दिस इज अ यूनिफॉर्म डिस्क व्हिच हैज अ मास m एंड रेडियस इज r. चलिए फटाफट लिखिए, सॉल्व कीजिए इसको. काफी आसान है, इजी वन, मुश्किल नहीं होगा आप लोग के लिए, है ना. वेरी गुड, आई एम श्योर आप लोग इसको कर पा रहे होंगे. मेरा भी इधर काम बच्चों हो गया. ये लो जी, मैंने भी इसको क्लीन कर लिया. चलो ठीक है, आई बिलीव आपने इसको ट्राई कर लिया होगा. अब देख लेते हैं फटाफट, है ना. तो ओके, आई एम गोना यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम अबाउट द सेंटर ऑफ मास आई नॉट and then mr square, and that would give you the moment of inertia about this axis which is I dash. Okay, not big deal. I naught we know which is how much? mr square upon 2. मेरे को पता है already. About this is given as mr square, तो add word कर दो, 2 plus 1 3 mr square upon 2. So that is the moment of inertia of about this axis which is kind of parallel to this and tangential भी है. ये हो गया, ठीक है. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं. Let us see one more situation. एक नॉन यूनिफॉर्म रिंग है. We have a non-uniform ring, but the total mass is given is, let's suppose, m. Oops. या फिर एक आपको निकालना है बच्चों कि let's say this is the, इसका एक सेंटर ऑफ मास है और at any point एक और एक्सिस है which is at a distance, let's suppose a distance आपका बच्चों a by 2, and about this axis the moment of inertia is I. मतलब कि एक्सिस इज आउटवर्ड, है ना, ऐसे. इफ यू लुक एट द साइड व्यू, आप साइड व्यू देखोगे तो ऐसे है ना. एक एक्सिस यहाँ पे व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, लेट्स सपोज, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास से कितना लिखा है मैंने, a by 2 पे, ठीक है. दिस लेंथ इज a by 2 और अबाउट दिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन एज I.
You have to tell me the moment of inertia about another axis over here, जो कि आपका डिस्टेंस है यहां से यहां तक, let's say a/3, about which you have to find the moment of inertia. इसके about moment of inertia कितना होगा? So let's say कि there is one more axis which is a distance of let's say a/3. You have to find the moment of inertia about this axis. इसको मैंने i' माना, i' मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना. आपको इसके about moment of inertia निकालना है. चलो ट्राई करो फटाफट, ट्राई दिस आउट. मुश्किल नहीं है, कर पाओगे सोचो, वीडियो पॉज करो और थिंक अबाउट इट. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट इट. आप इसको कर लोगे. चलिए जी, आई बिलीव आपने इसको ट्राई कर लिया होगा. ऑल गुड बच्चों. देखो बड़ा सिंपल सी बात है. दिस इज योर सेंटर ऑफ मास. तो इसके अबाउट तो आई नॉट मान लो, है ना, बट दैट्स नॉट गिवन टू यू. वो आपको दिया हुआ नहीं है. अच्छी बात है. बट अबाउट दिस तो इट इज गिवन विच इज पैरेलल टू दिस. तो कैन आई से दैट this I could I just write this as a moment of inertia about this axis, center of mass I naught plus mr square. m r is how much? a/2. तो a/2 का होल स्क्वायर बच्चों करोगे तो क्या हो जाएगा? दिस. ऑल गुड. अच्छी बात है. तो मेरे को ना इसको यूज करके आई हैव टू ट्रांसलेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर टुवर्ड्स हियर. मेरे को सारा इंफॉर्मेशन व्हिच वी हैव अबाउट दिस वन, आई नीड टू sort of transform that and get the moment of inertia about this particular axis. अच्छी बात है. इसके बाद moment of inertia is how much बच्चों? I dash. Well, that should also be given as what? I naught plus m. Distance is a/3. Well, that should be a square upon 9. Well, I think I'm sort of done now. I would just need to get this one. I naught is common in both of these. I would like to remove it and I would definitely like to get the value of I1. So can I just do 2 minus 1? Can I just do 2 minus 1? 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देने से क्या मिल जाएगा? I naught, sorry, I dash minus this I dash minus this I should be I naught will cancel हो जाएगा. और ये क्या बच गया बच्चों? आपका हो गया ma square upon 9. This is going to be ma square upon 9 minus ma square upon 4. Minus ma square upon 4. So I dash should be given as what? I will take that side. और इन भाई साहब कितना हो जाएगा? 36 हो गया ना. एंड दिस इज गोना बी नेगेटिव हो जाएगा, राइट? 5/36 ma स्क्वायर. बच्चों ये हो गया आपका आंसर. मुश्किल नहीं है ना. दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू डू. कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात तो बच्चों है ही नहीं, है ना. तो देयर कुड बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस एज सच. बहुत सारे क्वेश्चंस ऑफ दिस कैटेगरी कुड बी देयर वेयर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट एन एक्सिस which isn't passing through center of mass would be given, and they would be asking you the moment of inertia about another axis which also is not passing through center of mass. So yeah, this is how we should approach. और इस तरह क्वेश्चंस आप ट्राई करना, आपको श्योरली वो बन जाएगा. ठीक है जी. चलो अब ना एक काम करते हैं, फटाफट हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देख लेते हैं. लेट अस हैव द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. नंबर 2, सेकंड लॉ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो बड़ा सिंपल सा है और कहीं ना कहीं उसी सिंप्लिसिटी में कुछ खतरनाक बातें भी छुपी हुई होती है. उसको हम देखेंगे. इट लुक्स लाइक वेरी सिंपल थ्योरम, बट हियर एंड देयर वी हैव सम कैच पॉइंट्स एंड आई एम गोना डिस्कस विद यू. मैं उस पर बात करूंगा आपसे, बट फॉर नाउ बेसिक है. एक बेसिक बात समझते हैं इसके बारे में कि लेट अस सपोज इफ आई हैव अ बॉडी, यू नो, कोई एक 2 डायमेंशनल बॉडी है. ये 3 डायमेंशन के लिए वैलिड नहीं है. वेल द पैरेलल एक्सिस वाज वैलिड फॉर 2D 3D सबके लिए था, बट दिस इजंट वैलिड फॉर द 2D, सॉरी 3D. ये 3D के लिए वैलिड नहीं है. दिस इज वैलिड ओनली फॉर 1D और 2D. तो पहला कंस्ट्रेंट तो भाई साहब के साथ यही हो गया, वैलिड ओनली फॉर 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन बॉडीज, नॉट फॉर 3D बॉडीज. 3D बॉडीज के लिए काम का नहीं है, उसके लिए काम नहीं आता है बच्चों. ठीक है, पहली बात तो ये आपको समझ में आ जानी चाहिए. मैं थोड़ा इधर इसको हटा दूं, है ना. चलिए, तो ये भाई साहब बोलता क्या है ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 एक्सिस. मान लो कि 2 एक्सिस है व्हिच इज इन द प्लेन ऑफ दिस बॉडी. लेट्स सपोज दिस इज आई एक्स. मान लो मोमेंट एक्स को एक्स ही मान के चलते हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्स एक्सिस मान लो आई एक्स है, एंड लेट्स सपोज कि इट इज अ 2D बॉडी. तो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ, इट इज केप्ट इन द एक्स वाई प्लेन. तो दिस इज द एक्सिस मान लो y एक्सिस, और इसके अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो i y. सो इट सेज दैट सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 एक्सिसेस, 2 परपेंडिकुलर एक्सिसेस
in the same plane would give you the moment of inertia about the another plane which is perpendicular to this and passing through the point of intersection of these two. Let me repeat. So basically what happens that it says that sum of moment of inertia of about two perpendicular axes in the plane of body के plane में ही होना चाहिए ना, in the plane of bodies और body लिख लो, will be equal to moment of inertia of the body about an axis perpendicular to these two, मतलब कि इन दोनों के perpendicular these two and passing through the point of intersection of these two. तो कहने का मतलब है कि if I have this z axis, अगर मैं z axis इसको रिप्रेजेंट करता हूं बच्चों, this is my z axis, you know, and about this moment of inertia is taken as I of z, then according to this theorem x axis and y axis are, you know, these two axes, I've assumed this to be x and y axis, not necessarily it has to be x and y axis, and not necessarily that this has to be origin. तो इसमें origin का choice is completely upon you. आप you are free हो इसमें origin का choice लेने के लिए. It's not like it has to pass through center of mass or stuff like that. That the way we had in the parallel axis theorem. यहाँ पे आपको full freedom है. तो क्या बोलता है कि sum of these two moment of inertia, that is, let me write it here. So Ix plus Iy would be equals to Iz. ये आपका हो गया इस स्टेटमेंट का, इस लॉ का स्टेटमेंट. नॉट जस्ट दिस, अगर मेरे को इन दोनों की अगर एक प्लेन अगर इन दो, यू नो, दीज टू एक्सिस अगर x और z होता तो x प्लस z का y होता, अगर ये x एंड y है और फिर y एंड z होता तो x के अलाउंग देता है ना. तो ओनली थिंग इज दैट कि दोस टू एक्सिस अबाउट विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज टू बी एडेड शुड बी इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में होना चाहिए. ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसका बच्चों स्टेटमेंट. ठीक है जी. ओके, सो दिस कुड बी नाइसली यूज्ड इन मल्टीपल वेज टू फाइंड योर आंसर्स, टू फाइंड द थिंग्स. एक एग्जांपल मैं आपको फटाफट करा के दिखाता हूं. एक एग्जांपल इधर ही ले लो. लेट अस से दैट आई हैव दिस रिंग, यू नो, या फिर डिस्क मान लो, जो आपकी मर्जी, या फिर रिंग ही मानकर चलते हैं अभी, है ना. ये हमारा रिंग है. दिस इज द रिंग ऑफ मास m and radius r. About this axis I know the moment of inertia, right? About this axis I know the moment of inertia. और वो कितना होता है बच्चों? वो होता है mr square. अच्छी बात है. अगर मैं बोलूं कि if it is, let's suppose if it is kept in the xy plane, अगर xy plane में रखा हुआ है, मान लो ये x axis है और मान लो बच्चों ये आपका y axis है. It is kept in the xy plane. Now my dear kids, this is going to be a diameter, you know. एक डायमीटर हो सकता है, राइट? एक डायमीटर, isn't it? अगर मेरा मन कर जाए कि भैया मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ, टेल मी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस. अगर इसको हम Ix मान लेते हैं, टेल मी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज द डायमीटर टू दिस रिंग. बड़ा सिंपल तरीका से हम लोग इसको यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे. मेरी बात ध्यान से सुनना. नाउ इफ आई लुक एट दिस Ix एंड लेट्स सपोज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस इज Iy, आपको क्लियर कट दिख रहा है कि Ix and Iy would be equal. The reason being symmetricity. Ix भी Iy भी both side symmetric उतना ही मास है जैसा कि Ix के अराउंड सिमेट्रिसिटी है. तो बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी आई कैन इजिली से दैट Ix शुड बी इक्वल टू Iy. और अब मेरे को आप समझ में आ रहा होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो एक्सिस है इस डिस्क के प्लेन में, आप ऐसे समझ लो, कहां गया मेरा वो, हाँ. तो भैया ये जो एक्सिस है वो इसके ऐसे है ना. But these two diameter that I've taken is ऐसे और ऐसे. समझ में आ रहा है ना? ऐसे. तो this axis is perpendicular to this plane, but this x and y are in the same plane and are perpendicular to each other. It means, can I just say, my dear kids, can I say that? Okay, thanks. Okay, can I say that Ix plus Iy should be equals to Iz? अगर ये हमारा z axis है और z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर. आई नो दैट एंड दीस टू आर इक्वल. तो बच्चों कैन से दैट, लेट्स सपोज कि दिस इज इक्वल्स टू i, है ना. दिस इज इक्वल्स टू i. तो i plus i 2i शुड बी व्हाट, Iz, व्हिच मींस दैट
2I should be equals to mr square. That means the moment of inertia about any diameter of a ring will be given as mr square by 2. बहुत ही सिंपल कहानी हमने करके दिखा दिया है ना बच्चों. ऑल गुड. तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं. तो आई कुड एक्चुअली यूज द परपेंडिकुलर थ्योरम इन वेरियस ऑब्जेक्ट्स. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट. आज इधर ही रुकेंगे हम लोग. इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्शन हम इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे. तो आप बने रहिए. और अगर ये समझ में नहीं आता एक बार देखने में, डू नॉट हेजिटेट इन वाचिंग इट अगेन. ठीक है बच्चों. तो या लेट्स रैप अप द डे फॉर टिल हियर ओनली. आप और भी कुछ एग्जांपल करवाना है क्या इसमें भी? रहने दो. फिर अब बहुत सारे जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी. बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इसमें करने को और बहुत मजा आने वाला है. ठीक है बच्चों. सो आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग. And also do not forget to like, share and subscribe if you like the way I teach and if it is of some benefit to you. ठीक है बच्चों. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर. बाय.